रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने जिले जोगलंबा गढ़वाल के आलमपुर टाउन में 100 बिस्तरों वाले एक दवाखाने का संग बुनियाद रखा। उन्होंने जिलोला प्रोजेक्ट के करीब एक पार्क और शादी खाना तामीर करने का भी वादा किया। उनके हमरा रियासती वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, वजीर एक्साइज B श्रीनिवास गौड़, रुकने पार्लियामेंट रामलू, रुकने असम्बली अब्राहम, रुकने खानून साज कौंसिल वानी देवी भी थी। KT रामाराव ने टाउन में दूसरे प्रोग्राम में भी शिरकत की। ఆధ్వర్యంలో అక్కడ ఒక అద్భుతమైన పర్యాటక కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి శంకుస్థాపన కార్యక్రమం చేసుకున్నాం. కృష్ణమోహన్ రెడ్డి అని అడిగినాడు, అన్న జూరాల దగ్గర 15 కోట్లు సరిపోవు, ఇంకో 10 కోట్లు కావాలంటే శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్న వెంటనే తప్పకుండా చేద్దామన్నా, ఇంకో 10 కోట్లు కూడా నేను ఇస్తా అని చెప్పి మీ గద్వాల ప్రజల కోసం ప్రకటన చేసినాడు. అక్కడి నుంచి సబితక్క ఆధ్వర్యంలో బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడ PG సెంటర్లో ఒక మన మగ పిల్లలకు హాస్టల్, ఆడపిల్లలకు హాస్టల్ రెండింటిని ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాం. అదనపు తరగతి గదులు మీ ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీలో ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాం. కొత్త భవనానికి శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. ఒక్క మున్సిపాలిటీలోనే గద్వాల మున్సిపాలిటీలోనే 60 కోట్ల రూపాయలతో CC రోడ్లు మోరీలకు సంబంధించి శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. ఆ తర్వాత ప్రశాంత్ రెడ్డి అన్న ఆధ్వర్యంలో ఒక 25 కోట్ల రూపాయలతో బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు ఒక చక్కటి ఫ్లైఓవర్ను ప్రారంభోత్సవం చేసుకొని అదే ఫ్లైఓవర్ మీదుగా రైమ్ అని చెప్పి మీ ముందుకు వచ్చినాం. ఒక మంచి నాణ్యమైన ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్ను కొత్తగా జిల్లా కేంద్రంగా కేసీఆర్ గారి ఆశీర్వాదంతో ఏర్పడ్డ ఈ గద్వాలలో ఒక మంచి నాణ్యమైన మార్కెట్, బ్రహ్మాండమైన మార్కెట్ ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో దాదాపు 12 కోట్ల రూపాయలతో మార్కెట్కు శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. ఈ రకంగా ఎన్నికలు లేవు, ఇంకో 2.5 ఏళ్ల పాటు ఏ రకమైన ఎన్నిక కూడా లేదు రాష్ట్రంలో. అయినప్పటికీ మరి ఈరోజు గద్వాలలో 5 మంత్రులం వచ్చి మీ అందరినీ కలిసి కొత్తగా ఏర్పడ్డ ఈ జిల్లా గౌరవనీయులు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆశీస్సులతో ఈరోజు అభివృద్ధి చెందిన జిల్లాలకు ధీటుగా, వాటికి సాటిగా, వాటికి పోటీగా ముందుకు పోతుందని చెప్పడానికే ప్రత్యేకంగా మిమ్మల్ని కలవడానికి ఇక్కడికి వచ్చినామనే మాట ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. 1-2 కాదు, ఎన్ని కార్యక్రమాలు జరిగినాయో మాకు ఈరోజు ఉదయం నుంచి తిరుగుతూ ఉంటే మేం చెప్పడం కాదు, ప్రజలే మాకు చెప్తా ఉన్నారు. మధ్యలో దరూరు మండలంలో చిన్నపాడు అనే ఊరు దగ్గర ఒక దగ్గర పత్తి చేనులోకి పోయినాం మేమందరం కూడా మంత్రులం. అన్న పోతా పోతా हुजराबाद के जिमी कोटा में हैंडलूम की सनत से वाबस्ता 2000 अफराद में 69 लाख रुपए के चेक की तकसीम अमल में आई। वजीर फाइनेंस श्री हरीश राव, वजीर अखिल तैमूर कपूला ईश्वर, रुकने असम्बली के चंदर, TRS के लीडर्स एल रमना, पेद्दी रेड्डी और कौशल रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे. జర అర్థమైంది, ఒక ఏడాది చేయి తిరిగినాక SC STలకు కాదు అందరికీ ఇద్దాం, ప్రతి పేదింటి ఆడపిల్ల పెళ్లికి కూడా ఇస్తామని 50,000 ఇచ్చే కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసినాం. 3వ సంవత్సరంలో పోయినాక 50,000 చాలతలేవు సార్, 75,000 చేయమని అడిగిండ్రు. 3వ సంవత్సరం 75,000 చేసిండు. మళ్ళీ మొన్న ఎన్నికలు జరిగినాయి. ఎన్నికలప్పుడు TRS ప్రభుత్వాన్ని మళ్ళీ గెలిపించండి, 75,000 కాదు 1,116 ఇస్తామని చెప్పిండు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. మరి మళ్ళీ మీరందరి దయతో TRS ప్రభుత్వం మళ్ళా గెలిచింది. ఇప్పుడు మరి గెలవంగానే ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా ప్రతి పేదింటి ఆడపిల్ల పెళ్లికి ఈరోజు 1,116 రూపాయలు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని TRS ప్రభుత్వం ప్రారంభం చేసింది. దానికి కులం లేదు, మతం లేదు. స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు SCలతో స్టార్ట్ అయింది, 50,000తో స్టార్ట్ అయింది. చేయి తిరిగినాక 75 చేసినాం, అందరికీ ఇచ్చినాం. మళ్ళా కొద్దిగా చేయి తిరిగితే 1,116 రూపాయలు చేసిన విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. అట్లా మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ కార్యక్రమం చేసినా ప్రతి పేదవారికి దక్కాలన్నదే TRS ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన. అది కూడా మొదట్లో ఏం చేసినామంటే అమ్మాయి పేరు మీద ఇచ్చినాం చెక్కు, అత్తగారింటికి పోయినాక చెక్ వచ్చింది. ఆడికి పోయినాక అల్లుడు మోటార్ సైకిల్ కొంటా సంతకం పెట్టి అంటుండు. లేకపోతే ఈ అమ్మ లెక్క తెలివికల్లా అత్తున్నది అనుకో. भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति और विश्व हिंदू परिषद के कायदीन के साथ एक इजलास के बाद वजीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने बताया कि रियासती हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के विसर्जन पर रियासती हाईकोर्ट की लगाई गई रोक को चैलेंज करेगी. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत की दरखास्त की बुधवार को समाप्त करेगी और हमें उस वक्त तक इंतजार करना होगा. उन्होंने कहा कि हैदराबाद में गणेश त्यौहार बरसों से मनाया जाता है और एक आस्था का मामला है. इजलास में भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के जनरल सेक्रेटरी भगवंत राव, नायब सदर कौड़ीमल और VSP के सदर रामा राजू भी शरीक थे. मुमताज आलिमुद्दीन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कारगुजार जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने
सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। मौलाना रहमानी ने हज हाउस नामपल्ली में वाक़ मैरिज काउंसलिंग सेंटर को मौसर और कारगर बनाने की वकालत की। उनका मानना है कि अगर मुसलमानों के आइडी मसाइल की काउंसलिंग के जरिए यकसुई हो जाए तो उनका वक्त और पैसा ज़ाय होने से बच जा सकता है। राजभाषा हिंदी के कौमी दिन गांधी भवन में कांग्रेस के लिसानी शोबे की तरफ से एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें हिंदी जुबान के फरोग की जरूरत पर जोर दिया गया। जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेमलता अग्रवाल ने सदारत की। साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याक्षी गौड़, सदर शोबे लिसानी अखिलियत विशेष शर्मा और अखिलती लीडर फिरोज खान और दूसरों ने खिताब किया। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि उसने हिंदी भाषा के नाम पर वोट तो ले लिया, लेकिन उसे तरक्की देने के लिए कोई इकदाम नहीं किए। हिंदी दिवस के मौके पर आज गांधी भवन में हमारे निर्मल यादव साहब की सदारत में हिंदी दिवस का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। हिंदी दिवस का ये मतलब है कि हिंदी को आगे बढ़ाना। हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और हिंदुस्तान की शान है हिंदी, और एक हिंदी को अवेयरनेस पैदा करना है सारी दुनिया में। और जहाँ तक हम चाहते कि पूरी दुनिया की सबसे सुंदर तगड़ी भाषा हिंदी है। आज हिंदुस्तान के अंदर 70% लोग हिंदी समझते या बात कर सकते। चाहे आप डॉक्टर के पास जाओ, कंडक्टर के पास जाओ, लेबर के पास जाओ, वेटर के पास जाओ, होटल पे जाओ, कोई भी गली जाओ, और आप देखेंगे तमिलनाडु की वैसी जगह पे सबको हिंदी आता, मगर ड्रामा करते रहते क्योंकि हिंदी से डरते, क्योंकि हिंदी इतनी खूबसूरत भाषा है और इतनी ताकतवर भाषा है। तो 1918 में गांधी जी हिंदी सम्मेलन में बोले कि हिंदुस्तान की भाषा, पब्लिक की भाषा हिंदी है। और 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन अमल में आया, आर्टिकल 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज बोल के डिक्लेयर हुआ। तो हम हिंदी लैंग्वेज को बात करते हुए हम फख्र महसूस करना, और देश में अनेकता है, उसके बाद में देश में एकता है, और वो एकता का एक बेहतरीन जरिया है हमारी भाषा हिंदी भाषा। पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, कहाँ भी कोई भी मसलों के बारे में बात करना है, मोहब्बत और मजबूती के बारे में बात करना है, तो सबसे बेहतरीन साधन का काम है और नाम है हिंदी। सिटी पुलिस ने गणेश विसर्जन के सिलसिले में पुलिस बंदोबस्त के लिए मंगल को पुलिस कमिश्नरेट बशीराबाग में एक अहम इजलास मुनक़िद किया, जिसमें इंस्पेक्टर और उससे ज़ायद मरतबे के तमाम मुद्देदार शरीक थे। कमिश्नर पुलिस ने गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान अमन की बरकरारी के लिए मौसर इक़दाम करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने जुलूस के रास्तों और विसर्जन के मकामात पर हिफाजती इंतजाम के अपने मंसूबे से इन अहदेदारों को वाकिफ भी करवाया। Good morning to all of you. I welcome you all to this discussion with regard to Ganesh preparation. In Hyderabad City Police, Ganesh Bandobast is one of the most important bandobast. It goes into the maximum number of days also. It covers the entire city, not just the main procession, but also the tributary processions and the general tempo. The entire city of Hyderabad is engulfed by this atmosphere of Ganesh. As you are aware that last year, because of COVID, there was hardly any Ganesh celebration. Like most of the festival, there was no celebration. Therefore, we are doing it after a gap of 1 year. 2019 was the last major Ganesh festival, and then we are doing it now. So one of the purpose of today's meeting is that we have to take it to the better level of than 2019. And that is why all of you who have done it in various capacities,
you will know what are the challenges, what are the difficulties, and how to improve it. So I request each one of you that already in the past 10-15 days, Additional CP Law and Order, with the help of Special Branch, Mutyam Reddy Govardhan, and all the branch of officers, he has already made a plan, and more or less it is in the continuum of the previous years. So let us respect to that plan. All of us are here to facilitate the entire bandobast, entire celebration. We are not here to obstruct in any way. What is our aim? To have absolutely smooth, harmonious, incident-free and a happy bandobast. To make this event successful, all 16,000 police officers have to do every minute proper conduct. साबिक वजीर और कांग्रेस की सीनियर लीडर गीता रेड्डी ने सईदाबाद के सिंकारानी कॉलोनी में एक 6 साल लड़की की असमत रेजी और कत्ल के वाक़े की मजम्मत की। मुतासरा लड़की के लवाकिन से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वाक़े के 5 दिन गुजर जाने के बाद भी मुलजिम पुलिस के हाथ नहीं लगा। हालांकि सिटी पुलिस जराइम पर काबू पाने और बड़े बड़े मामले घंटों में हल करने के दावे करती है। गीता रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव के अलावा अब कुछ नजर भी नहीं आ रहा है और ना ही किसी मसले पर उनकी तवज्जो है। మాకు తెలియదు, పట్టినా రాలేదంటే మాకు తెలియదు అంటాడు సిఐ. ఆయనకు సిఐకే తెలియకపోతే ఇంకెవరికి తెలియాలి? ఎవరిని పోయి అడగాలి? మీరు ఎందుకు నీకు తెలియదంటే టాస్క్ ఫోర్స్కి అప్పచెప్పినారు. టాస్క్ ఫోర్స్ వీళ్ళు కలిసి ఇంకా కూడా వాళ్ళని పట్టుకోలేకపోయినారంటే అది యూజ్లెస్ పోలీసే అనుకో. దండిగా ఇక్కడ పోలీస్ వ్యవస్థ ముందు పట్టుకున్నారే, కొంతమంది తొందరగా పట్టుకున్నారు, ఎన్కౌంటర్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంది? కనీసం వాడిని పట్టుకొని అరెస్ట్ చేయలేకపోతున్నారు. దీన్ని పోలీస్ యూజ్లెస్నెస్, పూర్తిగా వైఫల్యం. పోలీస్ అంటే ఎవరు? ప్రభుత్వం పరంగా ఉన్నటువంటి వ్యవస్థను. అంటే ప్రభుత్వం కూడా ఇది పట్టించుకోవటం లేదు. కేసీఆర్ పట్టించుకోవటం లేదు, కేటీఆర్ పట్టించుకోవటం లేదు. నాకు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే ఇది కేటీఆర్ దత్తత తీసుకున్నటువంటి డివిజన్ అట. సొంతగా దత్తత తీసుకున్నటువంటి డివిజన్లోనే ఇంత దారుణం జరిగిపోయి ఒక చిన్న బిడ్డ ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. ఆ కుటుంబం సంగతి ఏంటని వచ్చి పరామర్శించాడా? ఏమన్నా ట్విట్టర్లో పెడితే ఆయన రెస్పాండ్ అవుతాడు. ఈ పేదవాళ్ళకు చదువు లేని వాళ్లకు ట్విట్టర్లో పెడతారా వీళ్ళు? అంటే ట్విట్టర్లో పెడితేనే ట్విట్టర్ రామారావు అని మార్చుకొని ఈ పేరు. टीआरएस के रुकन असम्बली टी जीवन रेड्डी ने सिंगारानी कॉलोनी सईदाबाद में एक 6 साल लड़की की अजमत रेजी और कत्ल के वाक़े की मजम्मत की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए तमाम तर कोशिशों को बरोकार ला रही है, मगर कांग्रेस इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े को मंशियात और शराब से जोड़ा जा रहा है। हकीकत यह है कि पंजाब में जहाँ कांग्रेस की हुकूमत है वहाँ मंशियात का कारोबार बड़े पैमाने पर और आज़ादी के साथ चल रहा है। जीवन रेड्डी ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की यात्रा को नाकाम करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में दम है तो उसे चाहिए कि वो मरकज से रियासत को 20,000 करोड़ रुपए की इमदाद दिलाए। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसल ई मल्लेशम भी मौजूद थे। న్యూస్ వస్తాయి అనుకొని ఆ మీడియా పిచ్చితో మరి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి మీద కేటీఆర్ బ్రాండ్ దీనికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని, ఆయన దానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని మాట్లాడుతున్నారు. ఈ రేవంత్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఈ రాష్ట్రంలో హోల్సేల్ బ్లాక్ మెయిల్కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్. ఏదన్నా ఇది అదని లేదు, ఎన్న బ్లాక్ మెయిల్ చేయాలన్నా కానీ దాంట్లో సిద్ధాస్తుడు ఎవరంటే అది ఈయన రేవంత్ రెడ్డి అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. గతంలో కూడా మల్లారెడ్డి టు మై హోమ్ దాకా, మెగా టు నవయుగ దాకా ఎవరిని అడిగినా కానీ ఈయన బ్లాక్ మెయిల్ గురించి చాలా స్పష్టంగా విపులంగా తెలియజేస్తారు. ఎందుకంటే అందరికి తెలిసిన విషయాలే, ఎవరిని ఎక్కడ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తాడు, ఎట్లా బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తాడు. కాబట్టి ఆయన బ్లాక్ మెయిల్కే బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. అదేవిధంగా చీకటి పనులకు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరైనా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఉన్నారంటే रियासती असम्बली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने किसानों को मखसूस काश्त के लिए मजबूर करने को गैर कानूनी करार दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की तरफ से अमलन किसानों को धमकियां दी जा रही हैं और ऐसा करना चीफ मिनिस्टर के शान शान नहीं है। मल्लू भट्टी विक्रमाका ने बताया कि उन्होंने कल चीफ मिनिस्टर के साथ इजलास में दलित बंधु स्कीम को हुजूराबाद के अलावा तमाम 119 असम्बली हलकों में रोबेमन लाने का भी मुतालबा किया।
చెప్పాము అదే గతంలో ఇచ్చిన హామీలు మంచిగా కానీ మరి అమలు కాలేదు కదా. ఏమా నేను ఎంత అలాట్ చేస్తారంటే దానికి సంబంధించి ఆయన సమావేశంలో 20,000 crores ఏదో అలాట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్లో అని చెప్పాను. సబ్ప్లాన్ బడ్జెట్ డిపెండ్స్ అగైన్ ఆన్ ద పాపులేషన్ ప్రపోర్షనే కదా. సో ఆ పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్ ప్రకారం 2,30,30,000 కోట్లు బడ్జెట్. అట్లా ప్లాన్ బడ్జెట్లో దాని లెక్కేసి సీఎం చెప్పినట్టుగా ప్రతి ఏటా 20,000 కోట్లు అన్నా కూడా 1,70,000 కోట్లు కావాలంటే అదే నేను అడిగింది. మరి 20,000 కోట్లు మీకు సరిపోతాయి కదా? నేను ఎట్లా సార్ అది సరిపో కదా అన్నాను. అంటే ఇంకా అవసరం అయితే అందుకోసం నేను అనేది అది రిలీజ్ చేసినట్లు కానీ చెప్పలేమా. कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट और इंतखाबी मुहिम कमेटी के सदनशीन मधु याक्षी गौड़ ने कहा कि किसान क्या काश्त करे इस बारे में कोई हुक्म या हिदायत देने का रियासती हुकूमत को कोई इख्तियार नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने किसानों को हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत पर तनकीद की और कहा कि किसानों की खुदकशी के मामले में तेलंगाना मुल्क की दूसरी रियासत बन चुकी है। चीफ मिनिस्टर ने 50,000 रुपये तक के किसानों के खर्चों को माफ करने का वादा किया था, लेकिन दिल्ली के दौरे के बाद वो अपने स्वादे से मुनरिफ हो चुके हैं। मधु याक्षी गौड़ ने कहा कि रियासती हुकूमत को मरकज के 3 ज़रूरी क़वानीन पर एहतजाज करना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा करने से खासी रही। में लगभग 60 लाख किसान परिवार है। कल का जो तेलंगाना सीएम ने जो बयान दिया 80% के ऊपर किसान पैडी ग्रो करते हैं और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पैडी नहीं डालना चाहिए। कुछ महीने पहले बताया कि देश में सबसे बड़ा पैडी जो उत्पत्ति हुआ वो तेलंगाना में। तेलंगाना एक धान्य भंडागार बन गया था। ये चंद्रशेखर राव जब नरेंद्र मोदी से मिलके आने के बाद 5 दिन दिल्ली में रह के आने के बाद ये दोनों एक समझौता कर लिया है, आज किसानों से पैडी प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। नया जो अग्री बिल्स लेके आए उसका मतलब भी यही था। वो झूठा बयान वहाँ प्रधानमंत्री दे रहा है, झूठा बयान ये मुख्यमंत्री दिया था। कल इनकी बयान से 5 किसान आत्महत्या कर लिए हैं। उनका रिस्पांसिबिलिटी मुख्यमंत्री है। देश में सबसे ज़्यादा किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं वो सेकंड पोजीशन तेलंगाना को है। तेलंगाना बने तो किसान समझे उनका जीवित अच्छा होगा। और चंद्रशेखर राव ने ये वादा किया, दावा किया था 1 लाख एकड़ मागानी, मतलब 1 लाख एकड़ ज़मीन में पैडी ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट बोल के लगभग 2 लाख करोड़ ये प्रोजेक्टों पे खर्च किया। अब ये नतीजा निकला कि ये प्रोजेक्ट जिसने जो शुरू किया ये सिर्फ कमीशन खाने के लिए शुरू करे से है। जब पैडी अगर नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे तो फिर ये प्रोजेक्ट किस लिए, पानी किसके लिए? तो इसके पीछे मतलब ये है कि ये लूटने की कार्यक्रम किया और किसानों के साथ लूटने का ये कार्यक्रम जो चंद्रशेखर राव ने किया उसके खिलाफ हम लड़ाई ये शुरू करेंगे। और ये हम ये डिमांड करते हैं चंद्रशेखर राव और नरेंद्र मोदी, तुम दोनों मिलकर देश के किसानों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। अपनी अदानी अंबानी के लिए ये गरीब किसानों का ज़मीन और उनका जो पैडी या जो भी वो ग्रो करते हैं। गजवाल टाउन पे बीजेपी के युवा मोर्चा कारकुनों ने रियासती वजीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.डी. रामाराव के कारों के काफिले को रोकने की कोशिश की। वो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के टीआरएस की हुकूमत के वादे को पूरा करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि हुकूमत ने 2 लाख सरकारी मखलूज जरूरतों को पूरा करने का ऐलान किया था। इसके अलावा बेरोजगार नौजवानों को हर माह
3,000 रुपए का वजीफा देने की भी बात की गई थी, लेकिन हुकूमत ने इन दोनों वादों को पूरा नहीं किया। पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को हिरासत में ले लिया और फिर उन्हें बादशाह जमानत पर रिहा कर दिया। तलागड्डा पुलिस हुदूद के इलाके जोशीवाड़ा कॉम्प्लेक्स में एक खातून के आतंक से मोहल्ले वाले परेशान। तफसीलात के मुताबिक जोशीवाड़ा कॉम्प्लेक्स में रहने वाली अनीता उर्फ यनकम्मा की जानिब से मोहल्ले वालों को हरासा किया जाता है। मोहल्ले वालों का कहना है कि यनकम्मा उन्हें गालियां देती है और मोहल्ले के जवान लड़के और लड़कियों के ताल्लुक से गैर गलत बातें कहती है। मोहल्ले वालों ने यह भी कहा कि वो हर रोज़ सेंधी का नशा करके मोहल्ले वालों से बेवजह लड़ती हैं और गैर ज़रूरी तमाशा करती हैं, जिससे सभी मोहल्ले वाले एक जहनी तनाव का शिकार हो रहे हैं। मोहल्ले वालों ने मज़ीद ये भी कहा कि साबिक़ा में एक खातून ने यनकम्मा की हिरासानियों से तंग आकर ख़ुदकुशी कर ली थी। अगर पुलिस यनकम्मा के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लेती है तो वो भी एक सुसाइड नोट लिख कर ख़ुदकुशी कर लेंगे। सुनते हैं मोहल्ले वालों का बयान। నీకే నీకే అందరు బాధపడద్దు, ఒక్కనికే ఇది. అరే నువ్వు నాశనం కమ్మంటే ఎవర్రా నాశనమేది, నువ్వైతే తిరిగి फालतू लंजो। मेरा नाम दीपिका है, मेरे हस्बैंड का नाम रोहन है। मैं जोशीवाड़े से बात कर रही और हम लोग जोशीवाड़े में आके 1 साल हो गया, नहीं सॉरी 2 साल हो गया। उन दिन भर हम लोगों से लड़ती, सुबह में आके कह के दरवाज़ा मार के हमारे मर्दों को मारती। दिन भर हमारे बच्चों के ऊपर कचरा डालना, पत्थरा फेंकना, पानी डालना और ना जाने क्या क्या टॉर्चर करते रहती। घर में है सो जवान बच्चियों को लिंक लगाते रहती इससे उससे, और मर्द बच्चों को बात करे तो क्या कि इसके साथ गई उसके साथ गई बोलती, नाना गलीस गलीस बातें करती। उन्होंने हमारे को बहुत बेजार हो गया सर उससे। हम लोग उनको एक्शन लेना, सीवियर एक्शन लेना। उनको अगर एक्शन नहीं लिए तो हम पूरे औरतें मिलके सुसाइड नोट लिखते उसके ऊपर। ऑलरेडी 2 रेप केस उन्होंने लिख के रखे सो है दूसरों पे। हमारे बच्चे हमारे सपोर्ट के लिए हमारे पीछे आए, अगर उनके ऊपर कल के दिन कुछ उंगली उठी तो हम औरतें चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम लोग इससे बड़ा एक्शन लेने वाले हैं उनके खिलाफ। पीएस में क्या बोले? अब पीएस में वो लोग क्या है सो बोले तो आप कंप्लेन नहीं ले रहे, औरतों को आना इजाज़त नहीं है बोल के बोल रहे हो लोग। लेकिन हमारे को अब रात में उन्होंने धमकी दे के अभी फ़िलहाल हम पुलिस के साथ भी जाए तो भी मैं गला काट लेती, तुम लोगों का नाम लेती बोल के ऐसे धमकियाँ देती। न जाने क्या क्या गोलियाँ खाती उन्होंने और क्या क्या बीमारियाँ हैं उसको। और मेन बात उसको क्या बोलते, वो सेंधी बोलते ना, उसके लिए बहुत एडिट है उन्होंने। वो पीते रहती, सबको लड़ते रहती, उन्हें खुद होश में रहती, दूसरों को होश में आने नहीं देती। ज़िंदगी भर उसका यही है, उसका ज़ाती घर है। सर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही, आप सबको फैमिलीज है हमारे जैसा, आप सब लोग जी रहे, कुछ भी करके दया करके उसको यहाँ से खाली कराने लगाइए प्लीज़। हम लोगों से रिक्वेस्ट है, हम लोगों से नहीं हो रहा और हम लोगों से पैसा वसूल करने को देखती उन्हें बात बात को, तू ये करता नहीं करता नहीं तो मेरे को पैसा दे, वो दे। मेरे मर्द को खुद कॉलर पकड़ के मारी सर उन्होंने, मेरे मर्द को खुद। अब मेरे को 2 छोटे छोटे औरत बच्चियां हैं घर में, मैं नहीं थी घर में उस टाइम पे आके मेरे मर्द को मारी उन्होंने। उसको क्या अधिकार है सर मेरे मर्द को आने के मारने को, बोलिए। इनके घर में दावत था तो उनके घर में घुस के 4 बार मारी उनको। क्या उसको कौन अधिकार दिए सर, बोलिए आप लोग। हम इतना, हमारे को जस्टिस होना, उन्हें घर खाली करके चले जाना, हमारे को सुकून से रहने का है, उन्हें चले जाना यहाँ से बस करना सर। यहाँ से मर्दों को तो रहना जीना हराम हो गया। मर्दा अपने बीवियों को लेके साथ में गाड़ी पे बिठा के घर के बाहर नहीं ले जा सक रहे, उतना टॉर्चर है सर। आप सोचिए इस बात पे, समझ में आ रहा? आप सोचिए छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे खेलना मुश्किल है वहाँ पे, ऊपर से पत्थर फेंकती उन्हें, 4थे मंजिल पे उन्हें। हर माँ बाप को डर लगता कि मेरे बच्चे को मैं बाहर छोड़ी तो क्या होता। सर कंप्लेंट दिए, इससे पहले कोर्ट में भी गए। मोइनाबाद में एक शर्मनाक वाक़या पेश आया, पड़ोसी ने किया पड़ोसी पर जानलेवा हमला। तफसीलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि हबीब नामी शख्स ने अपने ही पड़ोसी हफीज़ मोहम्मद आसिफ पे चाकू से 3 बार हमला किया, जिसमें मोहम्मद आसिफ बुरी तरह ज़ख्मी हो गए और ऑलिव हॉस्पिटल नालनगर में ज़ेर इलाज है। लड़ाई की असल वजह आशिकी बताई जा रही है। आसिफ के माँ बाप ने हुकूमत और पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश की है कि उनके बेटे की हिफाजत करे। मोइनाबाद पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। सुनते हैं इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बी राजू मोइनाबाद और मोहम्मद आसिफ के माँ बाप की ज़ुबानी। My inspector Moinabad police station on this month 10th evening 4:30 p.m. one incident occurred here Moinabad Muslim Basti. One Sheikh Yusuf and
शेख यूसुफ एंड पाशा मियाँ दोनों आजू बाजू रहता, ये लोगों फैमिली के साथ रहता। ये पाशा मियाँ को 3 सन्स 3 बेटा हैं। इनका सेकंड बेटा मोहम्मद आसिफ, 21 ईयर्स बॉय, फादर के साथ फ्रूट सेल्स बिजनेस करता इधर मोइनाबाद में। 10 तारीख 4:30 PM घर का समय ठहरे तो बाजू वाला नाइफ से अटैक हुआ, 3 टाइम्स स्टैबिंग करे। इमीडिएटली उनका घर लोगों भास्कर हॉस्पिटल शिफ्ट करे। भास्कर हॉस्पिटल से ऑलिव हॉस्पिटल, प्रेजेंट ऑलिव हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा। ये इंसिडेंट में एक अटेम्प्ट टू मर्डर आर्म्स एक्ट में केस रजिस्टर हुआ और एक ये शेख यूसुफ भी एक कंप्लेंट दिया। उनको 3 सन्स 1 डॉटर है। वो डॉटर 13 ईयर्स डॉटर, शी स्टडिंग 7th क्लास। उन्होंने आजू बाजू रहता। उन्होंने मोहम्मद आसिफ 21 ईयर्स बाय, लास्ट 6 मंथ से उन्होंने टीजिंग करना, लव कर रहा बोल के। इस इंसिडेंट में एक बार अगस्त 20 तारीख में मोहम्मद आसिफ उनका घर को अंदर भी गया। ये दोनों एल्डर्स बात करें, फिर और एक बार रिपीट नहीं हुआ। सिंगारेड्डी कॉलोनी सईदाबाद में अब तक सियासी कायदीन की आमद का सिलसिला जारी था, लेकिन मंगल को तेलुगु फिल्मी अदाकार मंचू मनोज लक्ष्मी भी पहुंच गए। उन्होंने चंद दिनों कबल अस्मत रेजी का शिकार 6 साल लड़की के वालिदैन से मुलाकात की और अपनी हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने उनकी मदद का भी यकीन दिलाया। मंचू मनोज ने कहा कि लड़की के कातिल को कैफर किरदार तक पहुंचाने के साथ साथ मुतासरा खानदान की बरवक्त मदद करना भी जरूरी है। बेरोजगार नौजवानों को मुलाजमतें देने का मुतालबा करते हुए साबिक चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी के दफ्तर और YSR तेलंगाना पार्टी की सदर शर्मिला ने हलमकुंडे में एक रोजा एहतजाजी भूख हड़ताल की। उन्होंने अपने खिताब में सवाल किया कि आखिर हुकूमत मखलू आजादों को क्यों पूर्ण नहीं कर रही है। वो गुज़िश्ता 10 हफ्तों से हर मंगल को अपने इस मुतालबे पर जोर देने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर भूख हड़ताल कर रही हैं। जिले वनपर्ती के मौजे किले खनपुरा में वाक़ जामा मस्जिद के अराजी पर गैर मजाज कब्जों की शिकायत करते हुए मस्जिद कमेटी के सदर मोहम्मद कमाल पाशा और जनरल सेक्रेटरी सैयद फिरोज ने वक्फ बोर्ड से फौरी हरकत में आने और शरपसंदों के अज़ाइम को नाकाम बनाने का मुतालबा किया। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि गैर मजाज काबिज़ीन को मुकामी रुकन असम्बली की पुष्पनाई हासिल है। मस्जिद की अराजी 4 एकड़ से ज्यादा है, जबकि इससे मुतसिल कब्रिस्तान पर भी कब्जे की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड से मुतअद्दिद बार नुमाइंदगी की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं मस्जिद कमेटी के सदर से बात कर रहा हूँ और आज जुमा का दिन सितंबर 10 तारीख है। इससे पहले अबू एमएल साहब आए थे 9 जनवरी के। उन्होंने आके हमारे 11 तारीख को वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब के पास बुला भेजे। उन जो है सो उनके पास जो दरख्वास्त पेश करे, उन्होंने क्या बोले, अच्छी बात है मैं सब कर देता हूँ, सब ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, बेफिक्र हो जाओ। मैं वहाँ के बोर्ड के गौस साहब को फ़ोन करे, उन्होंने के एक सब ये सब चेकअप करे। चेकअप अच्छी बात है, मैं लिख के भेजा के काम जल्दी से कर देता हूँ बोले। और सामने कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान को तोड़ के रात डब्बे डाल रहे हैं, उसके बारे में भी शिकायत करें हमें। उसको कंपाउंड बना बोल के भी उसमें तहरीर में लिख को दिए। मस्जिद के अतराफ कंपाउंड बना बोले भी तहरीर में चेयरमैन साहब को लिख को दिए। ये मस्जिद की हालत कैसी है देखो, ये झाड़ा, ये चीज, ये सब ऐसे मजबूरी हालत में है। हम लोग कुछ भी करने गए तो वक्फ बोर्ड वाले डेवलप नहीं करते, उधर गांव वाले RKJ वाले शिकायत करते। वो लोग भी आके खाली आते, चेकअप करते रहते जाते हैं, चेकअप करते रहते जाते, नमूना कर देते हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे। अब आपकी मेहरबानी है कि कब्रिस्तान का कंपाउंड, मस्जिद के अतराफ कंपाउंड करिए। देखो हमारी भी ये गाँव की मजबूरी है, आपके सामने रख रहे हैं। सलीम साहब आपके हमारे मस्जिद के दौरा करिए, आपसे गुजारिश है कि ये काम हमारे लोग भी हमारे पूछ रहे हैं, तुम जनवरी के 11 तारीख को गए, क्या काम करे तुम, आज तक कुछ काम नहीं किया। उस काम में सब पूछ रहे हैं, हमें उनको जवाब नहीं दे सक रहे। अब मेहरबानी से इसको वीडियो बनाने का मतलब भी क्या है, वो लोगों से आज पूछ रहे, इसलिए वीडियो बना के आपके साथ हमें भिजा रहे। ये काम डेट देने आज जुमा है, सितंबर 10 तारीख है। मेहरबानी से ये काम जल्दी से जल्दी करिए सलीम साहब, हम बहुत गाँव में मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने कंट्री क्लब बेगमपेट में वाक़ 3
पब्स को बंद कर देने के काम जारी किए। चुनाचे पंजागुट्टा पुलिस ने मंगल को इन तीनों पबों को बंद कर दिया। बताया जाता है कि इन पबों में गैर कानूनी सरगर्मियां जारी थी और उसके खिलाफ काफी शिकायत भी वसूल हुई थी। अदालत ने भी इन गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए पब को बंद कर देने की हिदायत दी थी। फलकनुमा पुलिस ने गैस स्टोव के टेक्नीशियन को घर तलब करके उन्हें लूट लेने के इल्जाम में 4 अफराद फातिमा नगर के 21 साला शेख मोहम्मद फहद, अंसारी रोड के 20 साला अवैस, फारूक नगर के 20 साला अब्दुल फहद खान और फारूक नगर ही के 19 साला उमर मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन गजला भोपाल ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन ने जो आपस में दोस्त हैं अपने खर्चे पानी के लिए एक मंसूबे के तहत पूजा गैस स्टोव सर्विस को फोन करते हुए टेक्नीशियन की खिदमत तलब की अवैस के घर और उन्हें अवैस के घर आने की ख्वाहिश की। इन चारों ने अवैस के घर से स्टोव दुरुस्त करने वालों को फारूक नगर के घर ले गए, जहां स्टोव बनाने के बहाने उनके पास से 3,000 रुपए की नकद रकम लूट ली, जबकि दूसरे टेक्नीशियन के फोन पे ऐप से के जरिए 6,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। उत्तर प्रदेश के मुतवत्तिन टेक्नीशियन सोहेल खान की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। नाम का एक बंदा गैस स्टोव रिपेयर करता था। ये ओरिजिनली उत्तर प्रदेश का नेटिव है, यहाँ आके यहाँ बहुत दिन से रह रहा है। उसको अपने ये फ़ोन नंबर ऑनलाइन दिया गया उसका गैस स्टोव रिपेयर के लिए। एक फ़ोन कॉल आया कि चांद्रायनगुट्टा एरिया में एक स्टोव का रिपेयर बोल के एक फ़ोन आया। उस टाइम पे रात में वो वहाँ गया और ये 4 बंदे वहाँ उनको एक कमरे में रख के उनको घबरा के उनसे पैसे और फ़ोन उनसे खींच लिए और इमीडिएटली वो पुलिस स्टेशन को खबर दिया, केस रजिस्टर हुआ और 12 घंटे के अंदर पूरी चारों को गिरफ्तार किए और पूरी कैश और मोबाइल फ़ोन रिकवर भी कर दिए। इसमें हमारी फलकनुमा क्राइम टीम डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रवि और उनके टीम और इंस्पेक्टर देवेंद्र, उन सब की लीडरशिप में हुआ। उन सबको भी हम हैदराबाद पुलिस की तरफ से बधाई देते हैं। कंचनबाग पुलिस ने एक 6 साला लड़की के अगवा के केस को हल करते हुए उसे शादनगर से बरामद कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन जी भोपाल के मुताबिक अंबरपेट की रहने वाली 31 साला खातून मुस्कान चंचलगढ़ा जेल के पास भीख मांग रही थी, जहां आसिया ने उससे मिलकर कहा कि वो हाफिज बाबा नगर के एक शख्स का पता बता सकती है जो काफी खैरात देता है। आसिया भी की बातों में आकर मुस्कान अपनी बेटी के साथ एक ऑटो में हाफिज बाबा नगर पहुंच गई। आसिया ने मुस्कान को दूर से एक घर की निशानदेही की जो कि खैरात देने वाला बताया गया। मुस्कान जैसे ही अपनी बच्ची को छोड़कर ऑटो से उतरी, आसिया ऑटो में सवार इस लड़की को लेकर फरार हो गई। मुस्कान की शिकायत पर पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से आसिया बी को गिरफ्तार किया, जो शमशाबाद से आरटीसी बस में सवार होते हुए शादनगर जाने की कोशिश कर रही थी। कल कंचनबाग पुलिस स्टेशन लिमिट्स हाफिज बाबा नगर में एक 6 साल की बच्ची का किडनैप हुआ। बच्ची और अपनी माँ के साथ चंचलगुड़ा एरिया में रहते थे और कल एक औरत आई वहाँ पे आके उसको बोली कि उसकी ज़कात में कुछ लोग पैसा और कपड़े देने वाले थे हाफिज बाबा नगर में। ऐसा बोल के वो मदर को और बच्ची को दोनों को ऑटो में बिठा के वहाँ तक ले गई। वहाँ जाते ही वो अपनी वो बच्ची की माँ को बोली कि इस घर में एक पास वाली एक घर में यहाँ ज़कात दी जाती है। वहाँ जब वो बच्ची की माँ वहाँ गई तो ये खातून बच्ची को लेके ऑटो में निकल गई और वहाँ से बच्ची की माँ डायरेक्ट कंचनबाग पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट दिया। इमीडिएटली केस रजिस्टर करके टीम्स बना के पूरे इस एरिया में जहाँ तक ये सीसीटीवी कैमरास है वहाँ तक उसको फॉलो करते गए और आज सुबह 3:30-4 बजे टाइम में एक खातून को और ये बच्ची को शमशाबाद एरिया में उसकी घर में खातून की घर में उसको अरेस्ट किए और बच्ची को भी वहाँ से रेस्क्यू किए। इस पूरी ऑपरेशन में
और ये खातून की आइडिया है कि उस बच्ची को एक चाइल्डलेस कपल है वहीं शमशाबाद में रहते हैं, उनको 15,000 रुपये को बेचने का उसका आइडिया था। सर ये एक ही बच्चे को चुराई है, इससे पहले भी ऐसा कुछ करके बेची? इससे पहले उनके ऊपर कोई किडनैपिंग केस नहीं थे, बल्कि उस पर ऊपर एक PDS राइस का स्मगलिंग का एक वहाँ शमशाबाद में एक केस है। जो ऑटो में लेके गए सर, ऑटो ड्राइवर इन्वॉल्व है इसमें? नहीं, उसका ऑटो ड्राइवर को मालूम नहीं। और ये जब तक ये चंचलगुड़ा से वहाँ हाफिज़ बाबा नगर तक गए, वहाँ से उसको बच्ची को अपने बातों से उसको उसके साइड कर लिए। ये ऑपरेशन में SI श्री इंस्पेक्टर एडिशनल इंस्पेक्टर कोटाया कंचनबाग, रवि कुमार डिटेक्टिव इंस्पेक्टर संतोष नगर, इंस्पेक्टर मादनपेट संतोष कुमार, SI नगेश कंचनबाग, SI उपेंद्र भवानी नगर, SI साई कुमार कंचनबाग, इन पूरों का और उनको पूरी क्राइम टीम का उस पर बहुत अच्छे काम किए। और इसके अलावा शमशाबाद के कांस्टेबल हनुमंतु ने उसका गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोविड-19 के 25,404 नए केसेस सामने आए। मरकजी वजारत सेहत का कहना है कि इसी मुद्दत में 339 नई अमवात हुई हैं। दूसरी तरफ इस मौत पर काबू पाने के लिए 16 जनवरी से शुरू करदा कोविड-19 वैक्सीन की टीके अंदाजी की मुहिम तेजी के साथ जारी है और अब तक 75 करोड़ 22 लाख अफराद टीके ले चुके हैं।